SDPI spokesperson, Mrs. Yasmin Islam, the national president, Mrs. Rehana, Mrs. Behrunisa Khan, and Professor Sadia Saida, and Mrs. Shahida Tasneem, and all the guests who have connected with us today to celebrate this very special day of completion of 75 years of independence of this great nation. August 15th is a day when we are filled with national fervor and the glory of our country, as we remember the struggle and efforts of freedom fighters who fought for the independence of India. The sacrifice made by the women of India in the struggle has occupied the foremost place. They fought with true spirit and undaunted courage and faced various tortures, exploitation, and hardships to earn us this freedom. Women's participation in India's freedom struggle began as early as 1817, when Bhima Bai Holkar fought bravely against the British Colonel Malcolm in a guerrilla war. Many women, including Rani Channamma and Rani Begum Hazrat Mahal, fought against the British East India Company in the 19th century itself, 30 years before the first War of Independence in 1857. Women India movement is here to celebrate the courage and spirit of Indian women who form the heart and soul of this great nation. It is the security from torture, atrocities, and exploitation that the brave freedom fighters of yesteryear sought, along with freeing India from the clutches of the colonial rule. Today, 75 years down the line, how close we are to achieving this goal is the question that we are asking today. This is what we are here to assess. The security of women is the foundation of freedom. I would like to now invite Mrs. Yasmin Islam, the National President of Women India Movement, to address the attendees of this virtual meet. Yasmin Islam. आप लोग म्यूट करना है, नहीं तो नहीं सुनने होता है, तो लोग म्यूट करना है ऑडियो। आदाब, नमस्कार। Ma'am, you will have to unmute yourself. Yasmin ma'am, please unmute yourself. Please. Everyone mute your audio. Otherwise, we can't listen. Please. Only Yasmin ma'am has to unmute. Afshana ma'am, something wrong. Yasmin ma'am, please unmute yourself. Yasmin ma'am. Yes. Yasmin Islam ma'am, please unmute yourself. You're muted. मेरे तमाम देश के लोगों को सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। दोस्तों, जैसा कि आज हम 75वें यौम आज़ादी को मना रहे हैं, तो आज के दिन मेरे देश के तमाम लोगों को मैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज पूरा देश यौम आज़ादी को जोश और खरोश के साथ, हर्षोल्लाह के साथ मना रहे हैं। हर किसी का नजरिया भले ही अलग हो, लेकिन खुशी वही है कि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ, तो हम ये आजादी का दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम अपने घरों में मिठाइयाँ बांटते हैं, झंडे फहराते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। पूरे देश के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर मजहब के लोग
اپنے اپنے طریقے سے انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب بات انڈیپینڈنس ڈے کی ہو تو ہم ان سوتنترتا سینانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنے خون کا بلیدان دے کر، اپنے جانوں کی شہادتیں دے کر دیش کو آزاد کرایا اور اپنے مقصد پر اٹل رہے، ڈٹے رہے کہ ہم نے دیش کو فاسسٹ طاقتوں سے آزاد کروانا ہے. جب دیش ہمارا انگریزوں کے چنگل میں تھا، بہت سے سوتنترتا سینانیوں نے اپنے طریقے سے دیش کو آزاد کرانے کی مہم شروع کی اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے برداشت کرتے ہوئے اپنے مقصد پر وہ قائم رہے اور یہی سپنا انہوں نے دیکھا کہ دیش کو ہم نے آزاد کروانا ہے. وہ جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آزادی کے وقت تک وہ اس دنیا میں نہ رہے، آزادی کا سورج نہ دیکھ سکے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے مقصد کو انہوں نے کہیں بھی ترک نہیں کیا، جٹے رہے، لگے رہے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر ہم اپنے مقصد کو پانے کے لیے جدوجہد کریں گے تو کبھی نہ کبھی وہ وقت ضرور آئے گا کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کریں گے. یہ فریڈم فائٹرز نے ہمیں ایک سبق دیا ہے. یہ لڑائی کافی لمبی رہی اور انگریزی طاقتوں کے خلاف ہمارے فریڈم فائٹرز نے ہر طرح کی پریشانیوں کو جھیلا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، جیلوں میں قید رہے، لیکن انگریزی حکومت کے آگے کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکے. اگر بات فریڈم فائٹرز کی آ رہی ہے تو ہم ان لیڈی فریڈم فائٹرز کو بھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے روزمرہ کی مصروفیت کو ترک کر کے مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑی اور اپنا نام سنہرے اکشروں میں اتہاس میں درج کروایا. اینی بیسنٹ، جھانسی کی رانی، بیگم حضرت محل، سروجنی نائیڈو، کستوربا گاندھی، یہ ایسے سنہرے نام ہیں جنہوں نے اپنے روزمرہ کے چین و سکون کو تیاگ کر کے عورتوں کے لیے ایک مثال قائم کیا. ہم آج بھی ایسے ناموں کو عزت سے دیکھتے ہیں، عزت سے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہم نے کس طرح سے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، ان عورتوں نے کس طرح سے مثال قائم کی، وہ آج اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آزاد ہندوستان میں ہم سانس لے رہے ہیں اور یہ ان کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد ہندوستان کے ناگرک ہیں. لیکن میں آپ کی توجہ کو اس طرف بھی کھینچنا چاہوں گی کہ آزادی کے 75 سال کے بعد کیا ہمارا دیش واقعی پوری طرح سے آزاد ہے؟ کیا ہمارے دیش کی عورتیں پوری طرح سے آزاد ہیں؟ کیا اپنا فیصلہ لینے میں وہ سکشم ہے؟ کیا ان کے گھر میں ان کو وہ سمان دیا جا رہا ہے جن کی وہ حقدار ہیں؟ آزادی کا سپنا دیکھتے وقت عورتوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ دیش آزاد ہونے کے بعد بھی وہ غلام بنی رہیں گی. لیکن آج ہمارے دیش میں دیکھیے جو فاسسٹ طاقتیں آج راج کر رہی ہیں، ہر طرح سے آپ کو دبانے کے لیے، آپ کی آواز کو کچلنے کے لیے آپ پر طرح طرح کے ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں تاکہ آپ سچ کے ساتھ نہ رہیں، آپ حق پر قائم نہ رہ سکیں. یہ فاسسٹ طاقتیں آج جس طرح سے کام کر رہی ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے کہ کیا ہم آزاد دیش کے ناگرک ہیں؟ کیا ہم اس دیش کے ناگرک ہیں جو پوری طرح سے ڈیموکریٹک ہے؟ ڈیموکریسی کا مطلب آج پوری طرح سے بدل دیا گیا ہے. جس طرح سے ہمارے سوتنترتا سینانیوں نے اپنے خون کا بلیدان دے کر دیش کو آزاد کرایا، ان کا مقصد یہی تھا کہ آنے والی نسل، آنے والی جو ہمارے لوگ ہیں وہ پرامن سانس لے سکے ایک کھلی فضا میں. لیکن جس طرح سے 1947 سے پہلے انگریزی طاقتیں جس طرح سے ہم پر قبضہ کیے ہوئی تھی، ہندوستانی کے آواز کو دبا رہی تھی، ان پر ظلم اور زیادتی کر رہی تھی، ان کے جسم کو چھلی کر رہی تھی، آج بھی وہ
दस्तूर कायम है। हर ताकतवर अपने से नीचे को दबा कर रखना चाहता है और आज के वक्त में हम ऐसी फासिस्ट ताकतों के घेरे में हैं जो हमारे सच बोलने पर एतराज करती हैं, जो हमारे हक पर कायम रहने से एतराज करती हैं, जो हमारे मजहब पर चलने से हमें रोकती हैं। अगर आज देश आजाद है तो हर किसी को आजादी का सही मतलब पता होना चाहिए। आजादी का जो एक तरीका है उस तरीके पर लोगों को चलना चाहिए, बोलने का फ्रीडम होना चाहिए, अपने मजहब के अनुसार चलने की आजादी होनी चाहिए। चूंकि हमारा देश पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो इस डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए जो हमारे मुल्क का संविधान है, हमें उस संविधान के साथ चलने की पूरी आजादी है और देश के संविधान ने हर एक देशवासियों को ये हक दिया है कि वो अपने मजहब पर चलते हुए देश में जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें, उस पर चले। लेकिन आज जो ताकतें हमारे बीच हैं, जो हम पर राज कर रही हैं, उनका मंसूबा भी अंग्रेजों की तरह से ही है। अंग्रेजों का मंसूबा था, जब उन्होंने देखा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ होकर के जंग आजादी लड़ रहे हैं। एक बात और मैं याद दिलाना चाहूंगी आपको कि 1947 से पहले जब जंग आजादी शुरू हुई थी, उस वक्त ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। सारे के सारे भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। लेकिन आज लोगों को जात पात की बुनियाद पे बांट करके, धर्म और मजहब की बुनियाद पे बांट करके राजनीति की जा रही है। अंग्रेजों ने 1947 से पहले यही सोचा कि अगर देश के तमाम लोग, हर जात, हर मजहब के लोग अगर मिलजुल के रहेंगे तो उनकी रोटी नहीं सिकने वाली है। इस वजह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो है उसको इख्तियार किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आपस में लड़ाकर उन्होंने हमारे देश में कई साल राज किए। आज के वक्त में भले ही देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजों के उसी फॉर्मूले को अभी की फासिस्ट ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं। डिवाइड एंड रूल, सबको तोड़ो और राज करो। हमारे देश का माहौल दिन ब दिन खराब करने के लिए लोगों को जात पात के नाम पर डिवाइड किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, नफरतें पैदा की जा रही हैं और नफरतें परोसी जा रही हैं। देश का हर नागरिक देश का एक अटूट हिस्सा है जो कभी भी इससे अलग नहीं हो सकता, लेकिन छोटे और निचले जाति को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश है। अल्पसंख्यक, मुसलमान सभी को इस देश से खारिज करने की पूरी तरह से साजिश चल रही है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक जंग आजादी में हिस्सा लिया और ये आजादी की लड़ाई काफी लंबी चली, आज भी हमारे अपने हुकूक के लिए, हमारी अपनी इज्जत व आबरू के लिए हमें एक लड़ाई और लड़नी है फासिस्ट ताकतों के खिलाफ। सबसे पहले तो मैं अपने देश के लोगों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि अपने आसपास, अपने घर की औरतों को इज्जत दें, क्योंकि हमारे मुआशरे में औरतों का जो हुकूक है वो बहुत दबा करके रखा जा रहा है। औरतों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। आज भी हमारे देश में औरतें पूरी तरह से आजाद नहीं है। औरतों की आजादी के लिए ये जरूरी है कि आप औरतों को इज्जत दें। चूंकि मैं विमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से पूरे देश को अपने मैसेज दे रही हूँ और विमेन इंडिया मूवमेंट औरतों के हुकूक की पासदारी की हिफाजत करती है, उनके हुकूक के लिए काम करती है, तो हमारा ये पैगाम है कि आप अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने देश की औरतों को इज्जत दें, उनका सम्मान करें, उनकी हिफाजत करें। आज देश में जिस तरह से औरतों के साथ घिनौने जुर्म हो रहे हैं, इस जुर्म से हमें बचना होगा। जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने खून की शहादतें दी, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में औरतों के साथ इतना जुल्म और ज्यादती होगा। देश आजाद होगा,
लोग आजाद होंगे, अपने तरीके से अपनी मर्जी से जी सकेंगे। तो देश की मजबूती के लिए औरतों का मजबूत होना जरूरी है। Just as for the strength of the house, its pillars must be strong. In the same way, it is very important for the women to be strong for the strength of the society. Similarly, security of the women is the foundation of freedom. और आज हम इसी बात पे लोगों का ध्यान देंगे, लोगों का ध्यान खींचेंगे कि एक औरत सभ्य समाज की पहचान होती है। औरतों को इज्जत देना देश को इज्जत देना है, औरतों को सम्मान देना देश को सम्मान देना है। अपने आसपास, अपने घर की औरतों, अपने देश की औरतों को सम्मान दीजिए। हम उस देश में जी रहे हैं जहां औरतों को देवी समझा जाता है, लेकिन देवी को कभी भी गंदी नजर से नहीं देखा जाता। उसी तरह औरतों को आप देवी समझिए और उनकी तरफ जो भी आपका रवैया है उसको बदलिए। औरतों को उनके फैसले लेने का हक दीजिए, अपनी मर्जी से वो अपना फैसला ले सके, ऐसा हक उनको हासिल होना चाहिए। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो हमारे देश में औरतों का एक बहुत बड़ा तबका बेसहारा लाचार है, जिस पर हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, औरतें एक बेहतरीन समाज का सुतून है। और साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, 21वीं सदी के दौर में हम जब जी रहे हैं, तो औरतों को भी उस तरह के हुकूक हासिल होने चाहिए। आज हमारा देश बहुत सारी ऐसे मसाइल से गुजर रहा है जिस पर फोकस करना जरूरी है, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आजादी के 75 सालों के बाद भी वी आर नॉट फ्री फ्रॉम poverty, we are not free from starvation, we are not free from bribery, we are not free from caste discrimination, we are not free from communal discrimination, इस तरह की चीजों से, and we are not from fascism, इस तरह की चीजों से हमने बचने के लिए एक रणनीति तैयार करनी होगी। हमारा देश किस तरह से सुकून में रहेगा, हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, हमारे देश में भाईचारगी के लिए, अमन व शांति के लिए क्या जरूरी है, ये आप और हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर मिलजुल करके देश को सुरक्षित रखेंगे, हम अगर मिलजुल करके मोहब्बत और भाईचारा फैलाएंगे, तो यकीनन हमारा देश तरक्की पर होगा। और अगर देश के लोग आपस में, हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई आपस में लड़ते रहेंगे, तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और आज की फासिस्ट ताकतें यही चाहती हैं, दिन ब दिन हमारे देश का जो डॉलर है वो गिरता जा रहा है, यहाँ तक कि सम्मान गिरता जा रहा है। अपने देश के सम्मान को बचाने के लिए हमने हर जद्दोजहद करनी है, हर कोशिश करनी है। उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स के खून का जो कतरा है, जो इस देश की मिट्टी में शामिल है, उसको हमने जाया नहीं होने देना है, उसको हमने पामाल होने से बचाना है। जो सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था एक आजाद देश का, उस देश को वाकई में आजाद रखना है। जिस तरह से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, हमने अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी मोहब्बत से अपने देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाना है। कोई भी फासिस्ट ताकत आपको लड़ाने की कोशिश करती है, आपको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करती है, उन तमाम साजिशों को आपको और हमें समझना होगा। क्योंकि हम अगर समझदार होंगे तभी किसी का मंसूबा रोक सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं। अगर हम किसी के मंसूबों में बहकर
अपने सोचने समझने की शक्ति, ताकत को अगर खो देते हैं तो हमारा देश इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा और हम बस तमाशा देखते रहेंगे। तो हमारे देश को अमन व शांति बनाए रखने के लिए, भाईचारगी बनाए रखने के लिए हम सबको मिलजुल कर रहना है। आज यौम आजादी जिस तरह से देश में मनाई जा रही है, सिर्फ खुशियां मना लेने से कि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ, ये काफी नहीं है। हमारे देश को वाकई आजाद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, हमें किस तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए, औरतों को किस तरह से हिम्मत देनी चाहिए, औरतों को किस तरह से आगे करना चाहिए, हमें इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारे देश से ये गुर्बत खत्म हो जाए, हमारे देश से ये हर तरह के जो कम्युनल विवाद है वो हट जाए, हमारे देश से गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएं। हर कोई खुशहाल रहेगा तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। और इसके लिए हम सबको आगे बढ़कर हाथ बढ़ाने की जरूरत है, हाथ मिलाने की जरूरत है। अगर हम लोग जात पात की बुनियाद पे लड़ते रहेंगे, हमारा देश कभी भी तरक्की की राह पे नहीं जाएगा। हम और आप इस देश के नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटीज है कि हम फ्रीडम फाइटर्स के उन तमाम बलिदान को सहेज कर रखें, उनकी हिफाजत करें और अपने देश में अमन, शांति, भाईचारगी को बनाए रखें। लास्ट में मैं यही आप लोगों को मैसेज देना चाहूंगी कि अपने घर की औरतों को इज्जत दें, सम्मान दें, न सिर्फ अपने घर की औरतों को बल्कि पूरे देश की इज्जत है औरतें, और उनको सम्मान देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप औरतों को सम्मान देंगे तो ये देश का सम्मान होगा, आप औरतों को इज्जत देंगे तो ये हमारे देश की इज्जत होगी। और ऐसा काम हमने करना है जो विदेशों में हमारे देश का नाम ऊंचा हो सके। ऐसा हमने कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे देश का नाम विदेश में खराब हो। तो इस चीज पर हमने गौर करनी है। आप सबको एक बार यौम आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें और अपने मकसद पर कायम रहें, अच्छे काम करें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। That was Yasmin Islam. Thank you, ma'am. Of course, Yasmin Islam ma'am has rightly pointed out that we have a very good constitution. In fact, one of the best. We have all the rights enshrined for a safe and secure life in a country. But we are still a far, long way off in implementing all those rights and ensuring those rights to the citizen of India, especially to women. Who are still a long way to achieve that freedom of movement, freedom of speech, and basic rights of work, and all the rights which have till now been denied in the society in India. And yes, she has rightly pointed out against the intentions of this fascist government, the present government, which still runs on the lines of the British rule to stay in power, the divide and rule policy. And we still have the struggle is still going on to fight against such divide and rule policy of the rulers. So this 75 years on, and we are still struggling to achieve that freedom, complete freedom for the citizens of India, especially women. And Women India movement is a platform which provides that strength and encourages this leadership and the strength for the women to fight and to stand for the rights and to stand up against injustices in the society. Thank you, Yasmin ma'am, for your speech, and where you have pointed out all the things, the present situation in India. Now, I would like to invite our next speaker, that is Rehana ma'am, who's a Vice President of Women India Movement, to deliver her speech. Rehana ma'am. Yes. My loving sisters and പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഏവർക്കും സർവശക്തന്റെ അനുഗ്രഹം വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനം.
വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആർഭാടത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവനും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസത്തിൽ വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വെബിനാർ